स्टार्ट। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग थे आईटीसी पर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। आपको नोट्स मिल गए? इनको नहीं मिले? ऐसा क्यों? क्यों मिल गए? मिल गए? क्या केयरलेस लोग हो तुम लोग यार। हम लोग आईटीसी पे थे, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 पढ़ा था हम लोगों ने। किस बारे में बात करते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 1? जल्दी बताओ, किस बारे में बात करता है? भूमिका किस बारे में बात करता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1? क्यों रिवाइज नहीं किया? किस किसने रिवाइज नहीं किया है? क्यों भाई? रिवाइज किया है? मेरी क्लास भी नहीं हुई 2 दिन तो। मेरी क्लास भी नहीं हुई 2 दिन। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया तनीषा क्यों नहीं किया? कल या परसों मिली तो बढ़िया है ना, और भी 2 दिन मिल गए। आज सुबह मिली हो तो बहाना मारते हो आप। क्यों नहीं किया भूमिका? हैं? ये थोड़ी एग्जाम में आएगा। आएगा क्या? मैं आपसे काम करता हूँ, रीडिंग कराता हूँ, खत्म कर देता हूँ। ठीक है? हाँ, आ जाओ, रीडिंग करते हैं बढ़िया। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 रीड कर लो फटाफट, आगे बढ़ रहे हैं। Goods and service or both are used by the registered person partly for the purpose of business or partly for any other purpose. Amount of credit shall be restricted so much of the input tax as it attributable to the purpose of the business. Example तुम लोग घर जाकर कर लेना, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है? Second, when the goods or services or both are used by the registered person partly for affecting taxable supplies, including zero rate supplies under this act under the Integrated Goods and Service Tax Act, partly for affecting exempted supply under this act, ठीक है? Amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as attributable to the said taxable supplies including zero rate supply. Example homework घर जा कर लेना, ठीक है? The value of exempt supplies under subsection 2 shall be such as may be prescribed and shall include recipient is liable to pay tax on reverse charge, transaction securities, sale of land, ये ठीक है? एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं है। शेड्यूल 3 के बारे में बात कर रहे हैं तो तुम देख लेना। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4, a banking company, financial institution including a non-banking financial company engaged in supplying service by way of accepting deposit, extending loans or advances shall have the option to either comply with the provision of subsection 2 or avail of every month an amount equal to 50% of an eligible input tax credit of capital goods and input services then and rest shall lapse, provided the option once exercised shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year, ठीक है? Provided further that the restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supply made by one registered person to another registered person having the same permanent account number, ठीक है? ITC is available only on those goods and services used for business. Exports and supplies to SEZ fall under the category of zero rate supplies. ITC is available on zero rate supplies and taxable supplies, but not on exempt supplies.
Note: the value of exempt supplies shall be such as may be prescribed and shall not include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse basis, transaction security, sale of land, और ये हमारा पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 वाला. Point 4, the option 1 exercise shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year. The received 50% shall not apply to the tax paid on supplies made by the once registered person to another registered person having the same pen. ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है, घर जाके सॉल्व कर लेना, तुम्हारा होमवर्क है. ठीक है. 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट्स. सही है, ऐसे पढ़ लें. बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ने में से. बढ़िया है ना यार, खत्म ही करना है अपन को, तो खत्म ही करना है. मेरा टारगेट ये है, सर बोली ना खत्म करो फटाफट. कर देता हूँ फटाफट खत्म 2 दिन में. जीएसटी क्या बोलते हो? हाँ, भाई सच बता रहा हूँ, फेल हो जाओगे. रिवाइज नहीं करोगे फेल हो जाओगे, अभी से ही बोलता हूँ. जिसने रिवाइज नहीं किया वो सोच लो कि तुम सी फाइनल फेल हो चुके हो, सी इंटर फेल हो चुके हो. सोच लो, सोच ही लो कि हो गए सर, फेल हो गए हम लोग, रिवाइज नहीं किया. तो जिस दिन रिवाइज नहीं किया उस दिन समझ लो फेल हो गए. जब मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं स्टार्टिंग से आपको रिवाइज करते 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 आनी है. नहीं रिवाइज करोगे तो ये आपके आपके गिर पे नहीं आएगा. जब मैंने ये जीएसटी पढ़ा था ना, तो हम 2 लोग थे. एक मैं था और एक मेरे साथ में एक लड़की थी. हम लोगों ने एक क्लास परचेस की थी और साथ में देख रहे थे. तुम्हारे पास जैसे भी सामने मैं खड़ा हूँ, हमारे टाइम पर अजमेर शहर में कोई टीचर हुआ नहीं करता था जीएसटी के लिए. हम लोग को बाहर से क्लास खरीदनी पड़ी और क्लास बहुत महंगी मिली थी उस टाइम पे, इसलिए हम लोग दोनों 2 लोगों ने मिलकर एक क्लास देखी थी. मेरी आदत थी कि जब मैं पढ़ रहा हूँ उसके उसी दिन रिवाइज कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ों को. और उसकी क्या आदत थी, फिर कोई बात नहीं, पढ़ लिया पढ़ लिया, कल सर आएंगे कंटिन्यू हो जाएगा वापस, क्या परेशानी है. अभी तक सीए फाइनल दे रही है वो, अभी तक. मेरे को निकले हुए 2021 में, 22, 23, 24, 3 साल हो गए, अभी तक दे रही है. क्यों दे रही है? अच्छा, कभी मेरी से बात होती है, मैं पूछता हूँ कि भाई क्या सिचुएशन क्या है. बोलती है यार जीएसटी बहुत डिफिकल्ट है, हो ही नहीं पा रहा है, हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिस टाइम में पढ़ाया था उस टाइम में रिवाइज नहीं किया. तुम लोग चाहते हो हमारी सिचुएशन आए ऐसी? हाँ भाई, चाहते हो क्या? तो क्या परेशानी है पूरे दिन के अंदर 1 घंटा देने में इसको? 1 घंटा भी नहीं मांगते यार ये तो. अपन जिस लेवल का पढ़ते हैं आधे घंटे में तो रिवाइज हो जाएगा. ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को, सच में लास्ट वार्निंग है. मैं कितना गंदा उड़ाता हूँ ना तुम्हें पता ही नहीं है. मैं सच में पूरा का पूरा कोर्स 10 दिन में खत्म कर दूंगा और मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है. मैं फालतू मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा भाई. मैं इतना डीप जाकर पढ़ा रहा हूँ, इतना डेप्थ में जाकर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना छोड़ दूंगा तो डेप्थ में ऊपर से रीड करके उड़ा दूंगा मैं सच में. और मैं कसम से बता रहा हूँ उड़ा दूंगा, झूठ नहीं बोलता हूँ. तुम लोग रोते रहोगे कि क्या हो गया सर हमारे साथ जीएसटी के अंदर, और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. मैं यहाँ पर है ना, अगर पढ़ाने आता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए और अपनी खुशी के लिए पढ़ाने आता हूँ. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे को इधर से कुछ एक्स्ट्रा अच्छा अमाउंट मिल रहा है, तो कभी मेरे ऑफिस आकर देखना क्या काम करता हूँ मैं. ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ तुम लोग के लिए आ रहा हूँ कि ताकि तुम लोग को एक अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले चीज़ों का, ताकि मैं मेरी नॉलेज तुम लोगों तक पहुँचा सकूँ. उस चीज़ की इज्जत करो. तुम लोग इज्जत नहीं करोगे, मैं इज्जत करना छोड़ दूंगा. मेरे को परवाह भी नहीं, मैं कसम से बता रहा हूँ, परवाह नहीं है. मैं चले जाऊंगा, मेरे को टेंशन ही नहीं है. तुम रोते रहोगे फिर देखना. और ऑनलाइन टीचिंग पहले के टाइम पर अभी के टाइम में रात दिन का फर्क है. अभी तुमने अगर ऑनलाइन टीचर को ले भी लिया, तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन आया, डाउट आया, मेल ही करते रह जाओगे, मेल करते रह जाओगे डाउट. और डाउट को मेल करना मतलब डाउट नहीं पूछने के बराबर है. ठीक है, ये जो गाइडेंस मिल रही है ना, मेंटरशिप मिल रही है, सब कुछ नहीं मिलेगा. तो लास्ट और फाइनल वार्निंग है, अगर तुम लोग ढंग से रिवाइज करोगे तो मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं कोर्स खत्म करके मेरे बाकी काम धंधों में लगूंगा. मेरे पास बहुत काम है.
10 बजे बाद कितने फोन बचे तुम्हारा सामने की बात है। तो 10 का अगर मैं 9 कर दूं तो मेरे लिए फायदा ही है, मेरा काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 था, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 था। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बात करता है रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट्स यूज करके या इंटेंशन टू यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो उसको उसका आईटीसी इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, यस और नो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 किस बारे में बात करता है? कंडीशंस। क्या क्या कंडीशंस है बताओ। पहली कंडीशन पोजेशन में होना चाहिए, सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन में होना चाहिए क्या? टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, होना चाहिए। सेकंड क्या था? गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो। फोर्थ पॉइंट, GSTR3B जो कहाँ लिखा हुआ, कहाँ है? सेक्शन 39 में, वो वाला रिटर्न फाइल कर दिया हो। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पेमेंट विद इन 180 डेज। जो पेमेंट है वो विद इन 180 डेज में पे कर देना। किसको? सप्लायर ने रिसिपेंट को। और नहीं तो क्या होगा? 180 डेज बाद क्या हो जाएगा? वो आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करेंगे? अपने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके, यस और नो। और साथ के साथ क्या क्या पे करना पड़ेगा? प्लस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितने परसेंटेज से? 18% से, यस और नो, है ना भाई। उसके बाद सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 किस बारे में बात करता है बताओ? डेप्रिसिएशन वाला पार्ट याद है क्या? कि भाई आप एक ही जीएसटी का दो दो जगह मजा नहीं ले सकते हो, इनकम टैक्स में और जीएसटी में, दोनों जगह पे आप सेम चीज का मजा नहीं ले सकते हो, यस और नो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, टाइम लिमिट फॉर अवेल आईटीसी। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी? व्हाट इज द टाइम लिमिट बताओ? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या तो मैं बात करूं फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का 30th नवंबर इज द लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है भाई। ये अपन लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने सेक्शन 17 स्टार्ट किया था, जो कि बात करता है प्रोपोर्शनेट के बारे में। वहां हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, याद है क्या? कि भाई अपन लोग क्या बाहर से मैदा लेकर आए थे, फिर मैदा को हम लोगों ने बेकरी के लिए भी यूज किया था और घर के लिए भी यूज किया था। उसी मैदा को अपने टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज किया था, एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज किया था, यस और नो। सेक्शन 17 इस बारे में बात करते हैं। हम सेक्शन 17 को और डिटेल में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पे आ रहे हैं, जो कि बात करता है ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। क्या बात करता है? ब्लॉक क्रेडिट्स का मतलब क्या हुआ? कि इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, इसका क्रेडिट को मिलेगा ही नहीं। बनवाया कि नहीं आया? इसका क्रेडिट आपको मिलेगा ही नहीं। अब देखो, ब्लॉक क्रेडिट्स गवर्नमेंट ने बनाई क्यों, पहले अपनी बात करते हैं। क्यों डाला है ब्लॉक क्रेडिट्स के बारे में गवर्नमेंट ने, समझना। गवर्नमेंट इनपुट क्यों देगी आपको? गवर्नमेंट इनपुट क्यों देगी बोलो? भाई गवर्नमेंट इनपुट देती है, गवर्नमेंट बोलती है भाई साहब, आप अगर ए परचेज कर रहे हो 100 रुपए का, तो ये कम से कम आप आगे ऐड करके 120 या 130 में तो बेचोगे बेचोगे मिनिमम। तो हमें लगता है अगर हम आपको 100 पे इनपुट दे देंगे, तो आप हमारे को 120 130 पर टैक्स भर के दोगे, यस और नो। हम आपको इनपुट तभी देंगे जब जब कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा होगा उसके अंदर, यार वैल्यू एडिड टैक्स है हमारा जीएसटी, यस और नो। गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट ऐसा करती है, गवर्नमेंट को पता है कुछ कुछ जगह ऐसी है, कुछ कुछ जगह ऐसी है जिसका अगर हमने आपको इनपुट दे दिया, तो आप लोग उसका मिसयूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मिसयूज कर सकते हो।
मतलब वो इनपुट ऐसा है कि हर कोई उस इनपुट को क्लेम करके अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी पे जो अपना आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है उसको कम कर सकता है बहुत ज्यादा, और इससे गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो सकता है। मतलब ऐसे कुछ गुड्स है, ऐसी कुछ सर्विसेज है जिसके परचेज पर गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। मतलब ऐसे कोई गुड्स एंड सर्विसेज है जिसको अगर सप्लायर परचेज करेगा तो उसको इतना मोटा इनपुट मिल जाएगा और फालतू का इतना मोटा इनपुट मिल जाएगा कि गवर्नमेंट परेशान होगी। ओ भाई साहब, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है, हाँ होता है। क्या होता है पढ़ते हैं हम लोग। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, नेमली पहला पहला क्या है? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, having approved sitting capacity of not more than 13 persons including the driver। ये नहीं पढ़ रहा, वैसे और ये सब नहीं पढ़ रहा है ना, छोड़ दो उसको एक बार। वापस पढ़ते हैं। क्या बोला? इनपुट किस पे नहीं मिलेगी? ऐसे मोटर व्हीकल पे जो कि यूज हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा नहीं हो, और 13 लोगों में ड्राइवर भी इंक्लूड है भाई साहब, 13 लोगों में ड्राइवर भी इंक्लूड है। क्या इसमें सारी की सारी 4 व्हीलर इंक्लूड हो गई क्या एक बार के लिए? हाँ भाई, अगर मोटर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे मोटर व्हीकल का मैंने क्या वो भी लिखा है डेफिनेशन। ये रहा मोटर व्हीकल। क्या होता है मोटर व्हीकल? shall have the same meaning as assigned to it in clause 28 of section 2 of motor vehicle act। सर ये रहा सेक्शन 228 का लिखा हुआ है। मोटर व्हीकल होती क्या है? मोटर व्हीकल मींस एनी mechanically propelled vehicle adapted for the use upon roads, whether the power of propulsion is transmitted thereto from an external or internal source, and include a chassis to which a body has not been attached and a trailer, but does not include a vehicle। देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ से तो फालतू बात लिखी हुई थी, वो नहीं रणछोड़दास वाली बात है, डेफिनेशन बोलो, ये लिखा हुआ था। अपने को मतलब नहीं, अपने एग्जाम में नहीं आने वाली चीज, बट ये आ सकती है। ये क्या है? क्योंकि ये बोलता है कि बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल में इसने कुछ चीजें इंक्लूड नहीं करी, वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। अ व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स or a vehicle of a special type adapted for use only in a factory or in any other enclosed premises, or a vehicle having less than 4 wheels, देखो, or a vehicle having less than 4 wheels fitted with the engine capacity of not exceeding 25 cubic centimeter, cc। cc बोलते हैं ना, cc का फुल क्यूबिक सेंटीमीटर है। 25 सीसी से ज्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, वो 25 सीसी। 25 सीसी ऐसी भी गाड़ी होती है क्या? अरे सीसी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अपने कार में सीसी होती है, बाइक में सीसी होती है। सीसी मतलब ये नहीं कितना स्पीड तक भागेगी, है ना भाई, सीसी मतलब कितनी पावर है उसके अंदर, है ना। अब इसने बोला भाई साहब मोटर व्हीकल सब चीज, उसने लगभग सब चीजें इंक्लूड कर दी है। अब इसने बोला भाई साहब मोटर व्हीकल का अगर आप परचेज करोगे तो आपको उसका इनपुट ही नहीं मिलेगा। ये बोला है ना, मतलब यार अगर 17 सेक्शन 5 में बोला है कि भाई मोटर व्हीकल आप अगर कोई भी परचेज करोगे जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से कम है तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात बोल दी इसने, क्यों बोली पहले समझना। अब क्या होता है, मैक्सिमम लोग अभी तक जीएसटी आने से पहले तक मोटर व्हीकल जो परचेज कर रहे थे वो बिजनेस के नाम पे ही कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ताकि उनको डेप्रिसिएशन मिल जाए। आज मोटर व्हीकल जो होती है सस्ती थोड़ी होती है भाई, आजकल कारों के जो दाम है 8 लाख 10 लाख 15 लाख 12 लाख 20 लाख 25 लाख, महंगी महंगी कारें हैं, ठीक है भाई। अब उन कारों पर जो जीएसटी का रेट है इस 28%। कितना? 28%। हिसाब लगाओ, अगर मैंने 20 लाख रुपए की कार परचेज कर तो कितना जीएसटी उसमें इंक्लूड होगा बताओ?
अगर मैंने 20 लाख रुपए का कार परचेज किया तो उसमें जीएसटी इंक्लूड है कितना इंक्लूड है ये बताओ। इंक्लूड है, सुन तो लिया कर। अब सोचो मैंने कोई 20 लाख की कार ली, अब कितना है 4 लाख। 20 लाख की कार में 4,37,000 का तो इनपुट खड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो क्या। तो गवर्नमेंट को इसमें कितना मोटा नुकसान है, गवर्नमेंट को इसमें कितना मोटा नुकसान है। भाई आप पूरे 20 लाख का डिप्रिसिएशन क्लेम कर दो, आपको धीरे धीरे मिलेगा। डिप्रिसिएशन 15% ही क्लेम करोगे हर साल, 15 कितना क्लेम कर लोगे। बट अगर हम लोग वन टाइम उसका आईटीसी दे देंगे तो 437,500 का आईटीसी पूरा का पूरा ऑन द स्पॉट सेकंड महीने में आदमी यूज कर सकता है ना यार। और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसा होता है। अभी मैंने कार परचेज करी, मैं अगर बिजनेस के नाम पे कर लेता तो मुझे 4.5 लाख का फायदा मिलता और गवर्नमेंट को 4.5 लाख का नुकसान होता। अरे कुछ भी कहो यार, कार आप परचेज करते हो पर्सनल यूज के लिए परचेज करते हो भाई साहब। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन लिखा है, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। यहीं पे अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर कोई गाड़ी परचेज की हुई होती तो यहाँ वो यहाँ इंक्लूड नहीं, उसका पूरा इनपुट मिल जाता। ये कॉमन सेंस की बात है, गुड्स के लिए आप तो यूज करोगे, जो परचेज करोगे वो आप बिजनेस के लिए यूज करोगे। अब गवर्नमेंट सोचती है तो कार परचेज कर रहा है, अब बिजनेस में अगर तू कार परचेज कर रहा है या कोई भी गाड़ी परचेज कर रहा है 13 सीट से कम वाली, तो यार वो तो पर्सनल यूज का इंटेंशन ज्यादा है उसका, ऐसा लगता है। इसलिए हमें लगता है कि आप तो झूठ भी बोल दोगे। आप क्या बोलोगे, भाई साहब मैं रोज घर से ऑफिस में गाड़ी में ही आता हूँ भाई साहब, और गाड़ी नहीं होगी तो मैं ऑफिस कैसे आऊंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस जाऊंगा तो आपको इनपुट का मैं रिटर्न कैसे दूंगा। भाई गवर्नमेंट तो क्या बोलेगी, गवर्नमेंट तो बोलेगी यार आप इनपुट ले लो ऐसी चीज का जिसको बिजनेस में यूज कर रहे हो। आप बोलेगा भाई साहब कार ले रहा हूँ, वो कार जो है मैं ऑफिस से घर पे लाऊंगा, घर से ऑफिस जाऊंगा। अरे यार समझ में आया कि नहीं, ऑफिस से घर जाऊंगा, घर से ऑफिस जाऊंगा, सर गाड़ी तो चाहिए, मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाया, बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बिकेगा नहीं तो टैक्स नहीं बनेगा, टैक्स नहीं बनेगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। दे दो। तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं भाई साहब, हमें पता है कि तुम पर्सनल पर्सनल यूज के लिए गाड़ी परचेज कर रहे हो, ठीक है, इसलिए हम आपको उसका इनपुट नहीं देंगे। अच्छा कोई अगर ऐसे बोले गवर्नमेंट को, भाई गवर्नमेंट भाई सुनो मेरी बात, अगर मैं उसी गाड़ी को यूज करके, अगर मैं गाड़ी को परचेज कर रहा हूँ और मैं उसी गाड़ी को यूज करके आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके दूं तो मतलब सर मैं जो बेच रहा हूं ना, मैं जो बेच रहा हूं उसमें उस गाड़ी का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट बोलेगी जैसे 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 भाई समझ, जैसे मैं गवर्नमेंट बोलता हूँ गवर्नमेंट भाई सुनना, ये जो कार है ना कार, ये मैं परचेस करके ऐसी किसी कार आगे बेचूंगा, मैं कार डीलर हूं। अगर आप कार डीलर हो, आप उस कार में डील कर रहे हो, आप कार परचेस कर उसको आगे बेचने के लिए, या कोई भी 13 सीटिंग कैपेसिटी से कम की कोई भी मोटर व्हीकल आप परचेस कर रहे हो आगे बेचने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई तब तो इनपुट मिल जाएगा ना यार, तब क्या परेशानी है। क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है भाई साहब हमारा इंटेंशन क्या है, तुम पर्सनल यूज के लिए ले लेते हो गाड़ियां यार, इसलिए हम इनपुट नहीं देंगे यार। अगर तुम बिजनेस में कोई भी गाड़ी परचेस करो 13 सीटिंग कैपेसिटी से कम का, 13 सीटिंग कैपेसिटी या उससे कम का, तो हम आपको उसका इनपुट नहीं देंगे। बट वही गाड़ी अगर आप परचेस करके आगे बेचने वाले हो तो हम आपको उसका इनपुट दे देंगे, क्योंकि यार आपने परचेस किया गाड़ी, वो तो चला नहीं रहे हो, आप आगे का बेच रहे हो। हमारे को उस गाड़ी से, हाँ गवर्नमेंट बोलेगी हमारे को उस गाड़ी से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, उस गाड़ी की वजह से दिख रहा है सामने, तो गवर्नमेंट ने उसको डाल दिया एक्सेप्शन। क्या, देखो देखो यहाँ लिखा हुआ है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, पहले ये बोल दिया, हम भी खुश, बढ़िया। फिर सेकंड में गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट भाई एक और बात बताओ, अगर मैं ऐसी कोई गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, भाई 13 कैपेसिटी कम से कोई भी मैं गाड़ी परचेज कर रहा हूँ, 10 सीटर की, मैं कोई भी भाई तूफान परचेज कर रहा हूँ, तूफान देखा, तूफान लंबी सी गाड़ी होती है, 10 लोग बैठे थे, 10 से 12 लोग बैठे थे आराम से, ठीक है। अगर मैं कोई भी 13 कैपेसिटी से कम की गाड़ी परचेज कर रहा हूँ और उसको मैं यूज में लूंगा पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब मैं ऐसा टैक्सी यूज करूंगा, टैक्सी
अब भाई साहब, मेरा धंधा ही है, मेरा बिजनेस ही है। अरे उस गाड़ी से ही मैं आपको टैक्स कमा के दे रहा हूँ। अब सोचो, वो गाड़ी में आदमी बैठेगा, टिकट के पैसे देगा, मैं आपको टैक्स दूंगा, बराबर है कि नहीं है? तो इस गाड़ी की वजह से ही तो मेरा धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है यार। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको भी क्या कर दिया, एक्सेप्शन में डाल दिया। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अगर आप करोगे उस गाड़ी के थ्रू, तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। बराबर, देखो कनेक्ट हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो? अपन गवर्नमेंट की आंखों में और एज अ बिजनेसमैन की आंखों में सब सेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? प्रैक्टिकली सोचना अपन को, वरना तो याद ही नहीं होगा ये फालतू चीजें। भाई गवर्नमेंट का इंटेंशन समझ गया क्या? अब गवर्नमेंट के इंटेंशन को अपन बीट कर रहे हैं, वो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखा आप लोगों ने, वो गाड़ी सिखाने वाले होते हैं, ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है, गाड़ी सीखी है, हमारे पास में आई है। अब सोचो, गाड़ी सिखाने वाले ने गाड़ी ली, अब वो आउटपुट टैक्स लिबिलिटी किसी क्रिएट करेगा? उस गाड़ी से करेगा। अरे वो गाड़ी नहीं होगी तो कैसे सिखाएगा गाड़ी यार? वो उस गाड़ी का यूज करके क्या कर रहा है, आउटपुट टैक्स लिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इसको भी यहाँ पे एक्सेप्शन डाल दिया, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग। तीनों पॉइंट क्लियर है क्या? उसके अलावा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये तो पता ही है हमारे को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, तो गुड्स के लिए किया तो वैसे भी अलाउ कर दिया इन लोगों ने। फिर बोलता हूँ मैं, मोटर व्हीकल जिसको जिसको यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, सिटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा नहीं है, उन 13 लोगों में ड्राइवर भी इंक्लूड है। ऐसी मोटर व्हीकल अगर आप परचेस करोगे तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इसके एक्सेप्शन क्या है? इसको अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की जगह पे ट्रांसपोर्ट गुड्स गुड्स में यूज कर लोगे, आपको इनपुट मिल जाएगा। उसके अलावा उसी गाड़ी को परचेस करके आगे फर्दर सप्लाई करने वाला हो, तब आपको इनपुट मिल जाएगा। या उस गाड़ी को आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हो, आपको तब इनपुट मिल जाएगा। या उसी गाड़ी के लिए क्या कर रहे हो, आप ड्राइविंग सिखा रहे हो उस गाड़ी के अंदर, तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी केस में उसका इनपुट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का इंटेंशन आपके दिमाग में क्लियर है? गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ने सेक्शन क्यों बनाया है, इसका इंटेंशन आपके मैंने मन में क्रिएट कर लिया गया कि भाई गवर्नमेंट को लगता क्या है, पर्सनल यूज के लिए गाड़ी यूज हो जाएगी यार, इसलिए। और इन तीनों केस में फील आ रहा है कि हाँ भाई, वो गाड़ी को यूज करके हम लोग टैक्स बना पा रहे हैं। सर गवर्नमेंट, भाई समझ रहे हो आप भी? तुम ऐसे गवर्नमेंट सोचोगी, तुम सही बोल, सही समझ, सही तुमने बनाया नहीं बनाया एक्ट? हाँ भाई, बराबर है क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो गया ना भाई। आप उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए तो यूज कर रहे हो गाड़ी को, मिलेगा इनपुट, मिलेगा इनपुट। बट उससे फिर आपका टैक्स क्रिएट होना चाहिए कुछ ना कुछ, इंटेंशन था गवर्नमेंट का। उससे आपको कुछ ना कुछ टैक्स क्रिएट होना चाहिए। अब अगर तूने गाड़ी ओला में चलवाई, तो खुद चलाएगा, कोई ड्राइवर रखेगा? अगर तो खुद ने चलाया, किसी ड्राइवर को रखा, तो ओला में टैक्स कौन भरेगा, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर ड्राइवर को तो रेंट पे दे दिया, तो वो तूने थोड़ी तूने कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए सर्विस ली क्या उसको? नहीं, तूने रेंट पे देने की सर्विस ली, फर्क है। और अगर समझना, अगर तेरे को रेंट पे देने से उस रेंट के साथ जीएसटी मिल रहा है, उस गाड़ी को तूने रेंट पे दिया और उस पर रेंट पे को जीएसटी मिल रहा है, एग्जांपल लेते हैं, तो फिर आप इसका इनपुट पूरा ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो और गवर्नमेंट को उसका उसका उसकी गाड़ी की वजह से क्या मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है। तो आपको तो गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है वो क्लियर होना चाहिए भाई। गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स, लायबिलिटी में टैक्स मिलना चाहिए ढंग से उसी गाड़ी की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है भाई, जब गाड़ी परचेस करते हो ना, गाड़ी परचेस किया, जीएसटी या 2B में उसका इनपुट आएगा, आप 3B में क्लेम कर लोगे। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने पहली बात तो 10 लाख से ऊपर अगर कोई भी गाड़ी परचेस करोगे उस पर टीसीएस करता है।
आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे, 10 लाख से ऊपर कोई भी गाड़ी परचेज होती है तो उस पर टीसीएस करता है 1%। तो अगर आपने कोई 20 लाख की या 15 लाख की या 12 लाख की गाड़ी ली, आप नॉर्मली कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर होती है यार, निकल ही जाती है साली। कितने भाग लो तुम लोग पीछे, इन्फ्लेशन उस रेट पे भाग रहा है कि 10 लाख से ऊपर गाड़ी वैसे ले लेते हो आप लोग। 10 लाख से ऊपर कोई भी गाड़ी ली, आपने 1% टैक्स पे कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है भाई इसने गाड़ी परचेज की है। तो गवर्नमेंट के पास सब चीजें हैं, इसने गाड़ी परचेज करी है, इसके पास इसके पेन से जीएसटी है कि नहीं है, इसके पेन से जीएसटी तो चेक कर लो, उस जीएसटी में उस कार का उसने इनपुट लिया है नहीं लिया है। अगर इनपुट लिया है तो गवर्नमेंट देखेगी उस जीएसटी नंबर से वो बिजनेस क्या कर रहा है। जिस नंबर पर दिखा अपन लिखते हैं ना वहाँ पे एचएसएन कोड, तो गवर्नमेंट देखेगी उस जिस नंबर से एचएसएन कोड कौन सा है, उस एचएसएन कोड से जज करेगी ये गाड़ी जो आप यूज करने वाले हो, गाड़ी का आपने जो इनपुट लिया है, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या ड्राइविंग के लिए या फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल है क्या। वो कहीं फॉल कर जाओ तो गवर्नमेंट छोड़ देगी, बट गवर्नमेंट लगेगी नहीं यार ये तो कहीं भी फॉल नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज एचएसएन, तो गवर्नमेंट नोटिस भेज देगी, शो कॉज नोटिस, कि हम आपके इस आईटीसी का रिवर्सल क्यों नहीं करें विद इंटरेस्ट। आप बताओ क्यों नहीं करें, हम नहीं बताएंगे, हम तो पूछेंगे क्यों नहीं करें, हमें तो करना है, तुम बताओ क्यों नहीं करें। तो तुम बताओगे सर अकॉर्डिंग टू 17 सबसेक्शन 5 ये ब्लॉक क्रेडिट्स में आता है, पर से कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अंदर ये है और हमें गाड़ी इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, खत्म। बोलो। अब मेरा क्लाइंट आया, बहुत शाना क्लाइंट था, बहुत शाना। मेरे को बोला भाई साहब गाड़ी खरीद रहा हूँ, बढ़िया कोरेटा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ क्रेटा ही होती है वो बोलते कोरेटा है, रईस लोग होते हैं ना थोड़े अथा पैसा पड़ा होता है, वो गाड़ी का नाम से मतलब ही नहीं, गाड़ी से मतलब है सिर्फ। और भाई साहब कोरेटा ले रहा हूँ, कोरेटा मतलब ले लो भाई साहब, बढ़िया कोरेटा में टेंशन क्या है। अला बढ़िया आइडिया है मेरे पास, आइडिया क्या है बताओ वाले। उसने भाई साहब मैं कोरेटा लूंगा 10.5 लाख की बेस मॉडल, क्या लूंगा 10.5 लाख की बेस मॉडल, और उसमें खर्चा कराऊंगा मैं 6 लाख रुपए का, उस 6 लाख में ऊपर वो रूफ टॉप भी बन जाएगा, सनरूफ नहीं बोला उसने, रूफ टॉप बोला, रूफ टॉप। हाँ अरे सर तुम हंस रहे हो, सच्ची कहानी है यार ये, सच्ची कहानी है भाई ये, रूफ टॉप, ऊपर रूफ टॉप भी लग जाएगा, अंदर म्यूजिक वूजिक सिस्टम भी सेट कर दूंगा, ये खिड़कियां भी ऊपर नीचे अपने आप होगी। बोला बढ़िया है यार, ना और कुछ, वो लो पीछे कैमरा वैमरा लग जाएगा देखने देखने के लिए, सब कुछ ऑटोमेटिक, सब बदल दूंगा मैं गाड़ी के अंदर। तो सुनो भाई साहब आपने मुझे बताया था गाड़ी खरीदने के लिए तो नहीं है, बट अगर मैं गाड़ी खरीद के उसके पार्ट्स अगर परचेज करता हूँ तब तो मिलेगा आईटीसी। या मैं गाड़ी खरीद के उसका इंश्योरेंस करता हूँ, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में तो मिलेगा आईटीसी। या मैं गाड़ी खरीद के उसकी सर्विस करता हूँ, सर्विस फ्यूचर में, उस पर तो मिलेगा ना भाई साहब आईटीसी। तो गवर्नमेंट को पता है हिंदुस्तानी फुल जुगाड़ू, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई उसने गवर्नमेंट ने इसी के अंदर मतलब ए के अंदर एक पॉइंट डाल दिया, क्या डाला देखो, मोटर व्हीकल या अदर कन्वेंशनल बात नहीं करेंगे अपन, एंड रिलेटेड सर्विसेज, कोई भी रिलेटेड सर्विसेज मोटर व्हीकल की आपको उसका भी इनपुट नहीं मिलेगा, भले फिर वो इंश्योरेंस हो, सर्विसिंग हो या रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला काम हो, नहीं मिलेगा इनपुट। मतलब गाड़ी परचेज कर ली सर, बाद में फ्यूचर में भी कभी अगर मैं रिपेयर मेंटेनेंस या मैं उसका सर्विस करा रहा हूँ, इंश्योरेंस करा रहा हूँ, उसका इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा ये जो बात कर रहा नहीं मिलने वाली, ये उसी की बात कर रहा है जो कि यहाँ नहीं मिल रहा था, है ना भाई। जिन गाड़ियों पे यहाँ पर इनपुट नहीं मिल रहा था, उन्हीं गाड़ियों पे आपको सर्विस का भी इनपुट नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का भी नहीं मिलेगा, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी नहीं मिलेगा, उन्हीं गाड़ियों पे। मतलब से ऊपर लिखा हुआ है कि भाई साहब अगर आपने कोई भी गाड़ी परचेज करी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो उस पर आपको ऊपर इनपुट मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी इनपुट मिल सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मतलब इंश्योरेंस करा होगा तभी इनपुट मिलेगा, सर्विस करा होगा तभी इनपुट मिलेगा, रिपेयर मेंटेनेंस करा होगा तब इनपुट मिलेगा। सर यहाँ पर
सर यहाँ पर अगर हम लोग फर्दर सप्लाई करें इनपुट मिलेगा, हाँ तो आपको उसी गाड़ी का अगर आपने यहाँ पर इंश्योरेंस करा तो इनपुट मिल जाएगा, सर्विस करा हुआ इनपुट मिल जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस करा हुआ तो इनपुट मिल जाएगा। सर अगर हम लोगों ने उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज किया तो यहाँ इनपुट मिल रहा है ना, ठीक है। तो उसी गाड़ी को अगर आप इंश्योरेंस करोगे तो इनपुट मिल जाएगा, सर्विस करोगे तो इनपुट मिल जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस करोगे तो इनपुट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर उसके अलावा अगर हम लोग वही गाड़ी ड्राइविंग सिखाने के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ इनपुट मिल रहा है ना, तो तभी यहाँ इनपुट मिल जाएगा। मतलब जिस जिस चीज का ऊपर वाले सेक्शन में इनपुट नहीं मिल रहा था, उन्हीं गाड़ियों का सर्विस के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए उसका इनपुट नहीं मिलेगा। क्लियरिटी आ रही है क्या पूरी की पूरी? कोई परेशान तो नहीं है इसके अंदर? अरे बोलो यार, पक्का क्लियर है? हाँ भाई। अब पहले हम मोटर व्हीकल का डेफिनेशन समझ लेते हैं, अपने एग्जाम में इस पे एमसीक्यू आता है। मोटर व्हीकल एक्सक्लूड्स क्या क्या? व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स। फिक्स्ड रेल्स पे जो गाड़ी चल रही है भाई, ट्रेन ही होती है वो तो, जो रेल पे चलती है वो ट्रेन ही होती है। हाँ भाई, इसने सारी ट्रेन को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, इसने सारी वो जो मोनो रेल वगैरह ये सब चीजें जो भी इस पटरी पे चलती, कोई छोटी मोटी गाड़ी पटरी पे चलती हो, उसको भी इसने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। अपने एग्जाम में इसके ऊपर इतना क्वेश्चन आता नहीं है इसके ऊपर, अपॉन फिक्स्ड रेल्स। सेकंड देखो, स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन अ फैक्ट्री और एनी इनक्लोज्ड प्रीमाइसेस। कभी टीवी पे देखा, एक फैक्ट्री के अंदर छोटी सी गाड़ी चल रही होती है, इस गाड़ी की बात कर रहा है, जो वेयर हाउसेज में घूमती रहती है, जो पूरे प्रीमाइसेस में घूमती रहती है, यहाँ से वहाँ, किसी को लेने जाना तो लेके जाती है, किसी को छोड़ने छोड़ के आती है। ये बोलता है भाई स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन अ फैक्ट्री और एनी इनक्लोज्ड प्रीमाइसेस, उसका भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। सॉरी, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सॉरी, उसका आपको इनपुट मिलेगा। ठीक है, ये मोटर व्हीकल में से क्या एक्सक्लूड है भाई, मोटर व्हीकल का इनपुट नहीं मिलेगा और एक्सक्लूड का इनपुट मिलेगा। उसके अलावा ऐसी कोई भी गाड़ी जो कि लेस देन 4 व्हील्स हो, बट विद इंजन ऑफ अप टू 25 सीसी, 25 सीसी तक की कोई भी गाड़ी तक का आपको इनपुट मिल जाएगा। ठीक है भाई, ब्रॉडली आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल। ब्रॉडली आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल ये पढ़ा ही हमने कौन है, विद सर्टेन एक्सेप्शंस, बट certain services relating to motor vehicle, namely general insurance, servicing, and repair and maintenance. The basic principle is that the motor vehicle on which ITC is blocked, the ITC on service of insurance, service, repair, and maintenance pertaining to such motor vehicle is also blocked. अब हम लोगों ने जो प्रोविजन पढ़ा ना, इस पूरे के पूरे प्रोविजन को सेम टू सेम इन्होंने कहाँ यूज कर लिया, वेसल को और एयरक्राफ्ट में यूज कर लिया। तो आपने खूब सारा पैसा कमा लिया, एग्जांपल लेते हैं, आपने खूब सारा पैसा कमा लिया, बोला यार क्या लूं, अब क्या लूं, तो आपके स्पाउस ने बोला, स्पाउस समझ गए ना, है ना, आपके स्पाउस ने बोला कि भाई साहब, भाई साहब ने बोला सॉरी, वैसे तो खराब हो जाएगा, आपके स्पाउस, हाँ हाँ सुनो चलो, आपके स्पाउस में सुनते हो, मेरे लिए एक शिप वगैरह खरीद लो ना छोटा सा, कभी कभी मैं अगर बोर हो जाऊंगी यहाँ पे घर बैठे बैठे, तो ना अगर मैं शिप में घूम के आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये छोटा मोटा शिप शिप खरीदना है, शिप, अगर कोई शिप परचेज करते हो और शिप को फर्दर सप्लाई के लिए यूज नहीं करते हो, ना ही उस शिप को आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करने वाले हो, ना ही उस शिप को, सुनना, ना ही उस शिप को आप वो फ्लाइंग नेविगेटिंग या सॉरी फ्लाइंग तो होगा नहीं, नेविगेटिंग के लिए यूज कर रहे हो। नेविगेटिंग होता है ना, नेविगेट करने के लिए भी उसमें शिप्स वगैरह यूज होता है, अदर व्हीकल्स को नेविगेट करने के लिए शिप्स यूज होता है। अगर आप इन पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, या उस शिप को आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट और क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? सब सेम है, वेसल का भी सेम है और एयरक्राफ्ट का भी सेम है। मतलब आपने वेसल दिलाया और अगर वो वेसल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज नहीं हो रहा है,
पैसेंजर ट्रांसफर करने में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है भाई, नेविगेट करने में यूज नहीं हो रहा है, फर्दर ट्रांसपोर्ट करने में, फर्दर ट्रांसफर करने में नहीं यूज नहीं हो रहा है, तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। एमडी सीईओ कोई पैसेंजर है क्या? नहीं मिलेगा। एक कंपनी ने बस परचेज करी अपने अपने एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस से घर ले जाने के लिए, इनपुट नहीं मिलेगा। अगर तेरा सीटिंग कैपेसिटी से कम है तो मिल जाएगा। तो 15 की ले ला, 14 की ले ला, मिल जाएगा। नहीं, मोटर व्हीकल में तो इंक्लूड होगा, बट वो 13 सीटिंग कैपेसिटी वाले क्लॉज हट जाएगा। ले ले यार, रही साथ में। एयरक्राफ्ट ले ले, एयरक्राफ्ट। तो बैठे बैठे क्या करें, ले करना है कुछ काम, चलो ले लो एयरक्राफ्ट, लेके प्रभु का नाम, एयरक्राफ्ट ले लिया। सेम क्लॉज, एयरक्राफ्ट तो ले लिया आपने, उसको अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा, नहीं तो इनपुट नहीं मिलेगा। फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो उस एयरक्राफ्ट को तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। गुड्स के लिए यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के लिए तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स के लिए कर रहे हो तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। या आप फ्लाइंग सिखाने के लिए कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा सर। और ये सेम क्लॉज एप्लीकेबल है नीचे, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसेज, इन सब पे भी। भाई जिस जिसका इनपुट ऊपर मिल रहा था ना, उन सबका सर्विस से, उन सबका ये इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस का भी मिल जाएगा। और जिसका ऊपर नहीं मिल रहा था उन सबका यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल सोबर बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार। हाँ भाई। अच्छा, अगर ऐसा कोई बिजनेसमैन है जो ये गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है, और अगर ये गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो अगर इस टाइप की सर्विसेज ले रहा है, तो उसको इनपुट मिल जाएगा। मतलब भाई मैं बोलता हूँ मैं ट्रक मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ट्रक मैन्युफैक्चर, ट्रक के पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे, उस ट्रक के रिलेटेड सर्विसेज भी लेना पड़ेगा, उस ट्रक के रिलेटेड इंश्योरेंस भी कराना ही पड़ेगा मेरे को, तो आपको इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि आप वो ट्रक ही बेचने वाले होगे भाई। तो ये लिखा हुआ है, credit shall also be allowed for taxable persons engaged in manufacturing of such vehicle or engaged in supply of general insurance services in respect of such vehicle. Simple. चलो एग्जांपल देखो फटाफट, नीचे सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। 3 इलस्ट्रेशन है, तीनों इलस्ट्रेशन सॉल्व करो। हाँ नोटबुक में पढ़ो पहले एक बार।
चलेगा। SRS Cars Private Limited, a car manufacturer, purchase a tempo traveler. Sitting capacity of कितना people? 15 person for the transportation of his employees. भाई यहाँ पर जैसे 15% आएगा वो बात ही खत्म हो गई. Within the factory premises, can SRS Cars Private Limited can avail ITC on such purpose, such purchase? Yes. Yes. Will your answer be different if sitting capacity on tempo traveler is 10%? बोलो क्या आंसर होगा. ठीक है, इस केस के अंदर यू विल नॉट गेट एनी ITC. इनक्लोज्ड प्रेमिसेस नहीं है ना, लिखा हुआ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन एम्प्लॉइज विद इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस. नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई साहब. यहाँ पर सबसे लिखा हुआ इनक्लोज प्रेमिसेस. देखो लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस पीपल, स्पेशल पर्पस व्हीकल. मेंशन होना चाहिए एग्जाम में स्पेशल पर्पस व्हीकल है, being used in a factory or any enclosed premises. स्पेशल पर्पस व्हीकल होना चाहिए वो. ये स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं है. टेम्पो ट्रेवलर फैक्ट्री के अंदर चलाएगा क्या? टेम्पो ट्रेवलर फैक्ट्री के अंदर चलाएगा क्या? बताना मुझे तो एक बार. स्पेशल पर्पस व्हीकल होनी चाहिए. सेकंड देखो, केसरी टूर एंड ट्रेवल्स. काम क्या है इसका? टूर एंड ट्रेवल्स का टूर ऑपरेटर है. Purchase tempo traveler sitting capacity of 10% for a purpose of transportation tourist passengers during the package tours. Can Kesari Tour and Travels can avail ITC on such purchase? Yes, मिल जाएगा उसको. ठीक है, इसका बिजनेस ही है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए. कटराज डेयरी uses ship for delivery of its milk products. In this case, the supply of milk products is in the course of business. मिल जाएगा ITC. गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ठीक है, अरे नहीं मिलेगा इनपुट, क्योंकि 10 लोगों से कम 13 लोगों से कम है, इसलिए नहीं मिलेगा. और फैक्ट्री वाला बात ऐसा है, देखो समझो मेरी बात. ये ऐसा बोलते हैं कि स्पेशल पर्पस व्हीकल होना चाहिए. अब स्पेशल पर्पस व्हीकल एग्जाम में लिखा हुआ होगा, अगर कभी एग्जाम में आपने को ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है, लिखा होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल. जब तक स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं लिखा हुआ होता आप उस पर इनपुट नहीं दोगे. सिंपल है ना. स्पेशल पर्पस व्हीकल लिखा होना चाहिए एग्जाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको चाहिए तो हिंदी में लिख लो इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 का नीचे, कि भाई स्पेशल पर्पस व्हीकल लिखा हो तभी इसका इनपुट देना, वरना इनपुट मत देना. ऐसा हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी ऐसा. और नोट्स में लिख लो, नोट्स में लिख लो. सेक्शन 17 सेक्शन 5 क्लॉज ए. आगे बढ़े, चलो बी पे चलते हैं. ITC not available for the following supply of goods or services or both. Food and beverages,
आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर्ड अबव। इन सबको आईटीसी याद नहीं मिलता। इसको याद करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी स्टोरी बनाई है, सुनोगे स्टोरी है भाई? चलो। तो जानते हो क्या? क्या बताओ नाम उसका? क्या नाम है? भोला भाई, भोला। क्या नाम है? भोला। एक बार भोला भाई, भाई भाई, अब बाल बड़े हैं भाई के, अरे होते नहीं के यार, तेरे नाम है। सुनना भाई, भोला भाई का, वो एक बार भोला भाई का फ्लाइट में घूमने के लिए, घूमने, और फ्लाइट में भोला भाई को लड़की पसंद आ गई। भोला वाला लड़की को देखा, देखा 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 और खो गया। भोला भाई ने उस फ्लाइट में लड़की को बुलाया, एक्सक्यूज मी। लड़की आई, भोला भाई ने, भोला भाई से पूछा इंग्लिश में, व्हाट आई कैन गेट यू सर। भोला भाई ने बोला आपका नंबर। वो भोला भाई को घुमा गए थप्पड़ पड़ी है। भोला भाई बहुत परेशान, रोए। इससे फ्लाइट लैंड हुई, सबसे पहले किसके पास में है बताओ? मेरे पास। पता नहीं क्यों आया यार, क्या दिख गया उसको, आ गया अपना भाई, घर गेट खुला हुआ है, आ जाओ, जो जो ज्ञान चाहिए सब दे देंगे हम आपको। हमारे पास में आया, बोला, बोला ना कि सर बहुत इंसल्ट हुई, बहुत इंसल्ट, क्या किया जाए ये बताओ मेरे को तो आप। ना भाई, बोला भाई आप पहले तो बहुत मोटे हो, सबसे पहले आप लोग क्या, हेल्थ सर्विस। उसके बाद बोला भाई तुम्हारे जो बाल है ना यार, ये बाल कटवाओ यार, ये गया तेरे नाम वाला जमाना, फटाफट जाओ और ले लो ब्यूटी ट्रीटमेंट। बराबर है कि नहीं है? ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के बाद ना एक बढ़िया, देखो अभी गाड़ी वाड़ी लेने का मतलब नहीं खरीदने का, एक काम करो, गाड़ी को लीज पे ले लो, या रेंट पे ले लो, या हायर कर लो। क्या ले लो? लीज पे ले लो, रेंट पे ले लो, या हायर कर लो मोटर व्हीकल। ठीक है? ये हायर करने के बाद जाओ उनसे मिलने के लिए, फिर देखो, फिर तो बॉडी बनाई बोला भाई ने, बढ़िया हेल्थ सर्विस ली, फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, फड़ा बढ़िया फेस मसाज कराया, डिटैन कराया, क्लीन अप कराया, ब्ला ब्ला जो भी वट एवर करवा करवा के कहाँ गया वो, फिर गाड़ी लीज पे लिया उसने, मोटर व्हीकल लीज पे लिया, मोटर व्हीकल लीज पे लेकर कहाँ गया, उसके घर के बाहर गया, फिर बोला कैन आई गेट अ नंबर। तो भूला की भूली ने, भूला की भूली थी वो, भूला की भूली ने बोला यस यू कैन। गाड़ी में गया यार, पतला हो गया, बाल कटवा लिए, स्टाइलिश। तो भूला ने बैठो चलो कहीं घूम के आए, मैंने बताया था भूला को, बोला भूला हाथों हाथ ले जाना, कहां पर? कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने, दिल का रास्ता हमेशा पेट से शुरू होता है, भूला भूलना मत। बढ़िया भूला गाड़ी उठाया, बढ़िया खाना वाना खिलाने लग गया, और खाना वाना खिलाते उनकी शादी हो गई पक्की। और शादी में क्या कराना पड़ा उनको फिर? आउटडोर केटर। अब शादी तो हो गई है, जिंदगी तो कोई भरोसा नहीं है, कब बीवी बेलन मार के जिंदगी से जान छुड़वा दे। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसने बोला कि हम करा लेते लाइफ इंश्योरेंस और साथ के साथ हेल्थ इंश्योरेंस। जिंदा बच गए तो हेल्थ इंश्योरेंस, मर गए तो लाइफ इंश्योरेंस, दोनों काम आएगा भाई साहब। और इस कहानी से हमारे को भोला भाई ने ये पूरा का पूरा जो हमारा पार्ट बी है सेक्शन 17 से सेक्शन 5 का याद करवा दिया है भाई। तो बताओ भोला भाई ने सबसे पहले क्या किया? हेल्थ सर्विस ली, बॉडी बनाई। फिर सेकंड क्या लिया? ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया। ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के बाद उसने क्या किया? गाड़ी ली लीज पे, लेकर गया और उनको कहाँ लेके गया? खाने पर, फूड और
बेवरेज पे। शादी पक्की हो गई, फिर क्या हुआ? आउटडोर केटरिंग, और उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। सिंपल है क्या? क्या आप लोग इस भूला को बढ़िया ड्रॉ कर सकते हो क्या? तो करके दिखाओ, कौन बढ़िया भूला ड्रॉ करते देखूं मैं तुम्हारी बुक के अंदर। यहाँ जब मैंने बनाया वहीं पे बनाओ फटाफट जल्दी से। नहीं यार कुछ नहीं, तभी तो मैंने ऐसे याद कराया। अरे आखिरी में कुछ नहीं हुआ तो फिर भाई को कॉस्मेटिक सर्जरी करानी पड़ेगी। एक कहानी बदल दो, एक काम करो, ऐसे कहानी रखो कि भाई ने पहले हेल्थ सर्विस ली, फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, कुछ शक्ल समझ में नहीं आई अभी भी, तो भाई ने फिर कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। बोला ऋतिक रोशन बन के जाऊंगा अब तो मैं। मैं ऐसा बोला गया है, इन सब का आईटीसी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने बोला यार आप लोग फूड बेवरेज का आईटीसी देंगे, क्यों? आप लोग बैठे हो बिजनेस के अंदर, आप कुछ भी खाने को मंगाओगे रेस्टोरेंट से, आपको उसका आईटीसी थोड़ी देंगे। आपने एक बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली अपने बिजनेस के अंदर, उस पार्टी में आपने आउटडोर केटरिंग मंगवा लिया, अरे आप बाहर जा रहे हो, बोला मेकअप करवा रहा हूँ मैं तो, ब्यूटी ट्रीटमेंट। आप जिम जा रहे हो, अरे जिम के मेंबरशिप फीस पे आप बढ़िया जीएसटी क्लेम कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब हर एक बिजनेस में लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस होगा ही होगा, प्रोmoटर कराएगा खुद का, बिजनेसमैन कराएगा। उसका इनपुट क्यों मिलेगा भाई साहब? कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो आप, अरे क्यों मिलेगा? आगे आएगा वो, रुक जाओ, आगे आएगा वो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ऊपर वही जो गाड़ियां जो हम लोगों ने देखी पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए में जहां पर इनपुट मिल रहा है, सुनना, पार्ट ए पे जहां पर इनपुट मिल रहा है, अगर उन्हीं गाड़ियों को अगर अपन क्या करते हैं, लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, हायर पे करते हैं, ठीक है, तो भी उसका इनपुट नहीं मिलेगा, सीधी बात है। बट इन सब चीजों का इनपुट तभी मिलेगा, सुनना, इन सब चीजों का इनपुट तभी मिलेगा जब ये सब चीजें आप फर्दर सप्लाई करने के लिए यूज में ले रहे हो। अरे सर मतलब समझना, आपका काम है इवेंट वाला, आप इवेंट कंपनी हो, आपने आउटडोर केटरिंग लिया क्या करने के लिए? आगे सप्लाई करने के लिए, डेफिनेटली। आप इवेंट कंपनी हो, आपने फूड और बेवरेज लिया आगे सप्लाई करने के लिए, तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। आप मूवी में डायरेक्टर हो, मूवी में डायरेक्टर तो आपने सर्विस ली, ब्यूटी ट्रीटमेंट की, हेल्थ सर्विस की सर्विस ली, आप एज अ मूवी डायरेक्टर हो, मूवी प्रोड्यूसर हो, आप जो पैसा दे रहे हो वो फर्दर सप्लाई होगा। यस और नो? अगर आपने ये सब सर्विसेज या ये सब सर्विसेज है, इसको आपने सर्विसेज इसलिए लिए ताकि आप इससे कुछ आगे आगे सप्लाई कर सको। अगर आपका रेस्टोरेंट है, आपने मसाला, दूध दही घी सब चीज़ें क्यों परचेज किया? आगे सप्लाई करने के लिए। तो आपको उसका इनपुट रेस्टोरेंट से मिलता नहीं है, बाकी आपको अगर आप ऐसी भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो जिसको आप आगे फर्दर सप्लाई करने वाले हो, तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बोलो एग्जाम्पल्स है, पढ़ो फटाफट। सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस बाय रिलायंस फ्रेश हु इज फर्दर सप्लाइंग बेवरेज का आपको इनपुट मिल जाएगा। यस। सब फूड एंड बेवरेज सप्लायर इन प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस, यस मिल जाएगा आपको इसका इनपुट, है ना। इनवर्ट हेल्थ केयर सर्विस टू मैन्युफैक्चरर ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर, इसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा, नो। देखो मिल जाएगा, बट वो ये रेस्टोरेंट वालों को उन्होंने मना कर रखा है, वरना तो ऐसे एलिजिबल तो ही ना इनपुट के लिए यार, ये रेस्टोरेंट वालों को मना कर रखा है, वो अलग बात है, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई ऑफ आउटडोर केटरिंग टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फॉर सेलिब्रेटिंग 20 ईयर सक्सेस, नो नहीं मिलेगा भाई साहब। इनवर्ट सप्लाई ऑफ ड्यूली ट्रीटमेंट सर्विस बाय फिल्म प्रोडक्शन, मिल जाएगा। ये ब्यूटी होगा, ड्यूटी नहीं होगा ना, ब्यूटी कर लो उसको, मिल जाएगा इसका इनपुट, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर रोक रहा हूँ मैं चीज़ को। क्या क्या? मिल वैसे भी मिल रहा है ना, आईटी तुमने टिक कर रखा है, वो तो वैसे भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर वैसे मिलता है ना। देखो दो टाइप का आईटीसी है। एक तो आपने ट्रक मंगवाया, ट्रक खरीद लिया, एक ट्रक में माल मंगवाया, ट्रक में माल मंगाया तो आपको माल से मतलब है, ट्रक से मतलब थोड़ी है। और मैं अगर ट्रक परचेज कर लो, ट्रक से मतलब है, दोनों को मिक्स मत करना भाई, ठीक है। चलो इसका आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।
कल आप लोग यहाँ यहाँ तक रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय।